नमस्ते। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल टॉक विद अक्षदा पर, जहां हम करेंगे रियल एस्टेट की बात एक्सपर्ट्स के साथ। तो आज हमारे साथ जो ब्रांड है दैट इज शापूरजी पालुंजी brand, a renowned brand, a legacy of 150 plus years in Indian real estate। तो आज हमारे साथ SPRE से जॉय विले से मिस्टर अजिंक्य जी हैं। मिस्टर अजिंक्य रियल एस्टेट में 8 ईयर्स से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है एंड आज हम उनसे रियल एस्टेट के बारे में, पुणे रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, शापूरजी पालुंजी एंड जॉय विले के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। Hello. Hi, thank you. How are you? I'm good. How are you? I'm good. So आज हम आपसे डिस्कस करेंगे शापूरजी के बारे में, जॉय विले के बारे में। So shall we go ahead? Yes, absolutely. Okay. तो मिस्टर अजिंक्य मुझे बताइए जॉय विले और शापूरजी पालुंजी की 150 प्लस इयर्स की लीगेसी के बारे में आज मैं आपसे जानना चाहूँगी। Okay. So first of all, it started with Shapoorji Pallonji as a brand. Shapoorji Pallonji ये brand more than 150 plus now currently around we are closer to 160 years of legacy. So this brand has started with its construction. So we are known about Shapoorji Pallonji as a construction company. Okay. So Shapoorji Pallonji has started its construction from 1857. वहाँ से उन्होंने construction चालू किया था. So construction में we have achieved multiple milestones in entire pan India as well and in more than 60 plus countries as well. Okay. So construction में few, if I have to give you idea, the Chennai railway bridge. Yeah. It was ongoing, but now it is completed. That we have recently completed. Okay. So it's a benchmark that we have created in a construction thing. So Shapoorji Pallonji construction से, so it's a advanced engineering. There are two types of engineering: reverse engineering, advanced engineering. So we have advanced our engineering. So first of all, it's a construction company, and later on we have come into a real estate picture. So why we have entered into real estate segment? So Shapoorji Pallonji real estate segment has started not way much back, but it has started 10-12 years back. So why we have started this thing? So we have started this thing to meet the customer demands directly. So in that we have multiple segments. So if you talk about now Joyville as a segment, so Joyville falls under SPRE, so Shapoorji Pallonji Real Estate. So Joyville is an aspirational luxury segment for all of us. So for all of us middle class segments, so we want to have their house with Shapoorji Pallonji, and that's why we have introduced a new brand, Joyville. Yeah. Okay. So थोड़ा brief अगर मैं बता दूँ, Joyville brand के अंदर there are multiple investors. So first of all, Shapoorji Pallonji Real Estate holds more than 50 plus subsidiary, and the second multiple foreign investors as well. Okay. So because of all this of kind of investments and all this kind of foreign investors as well, so because of all this, so Joyville में हम एक वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। That's really nice. And इनकी Joyville के मैं विजन मिशन के बारे में जानना चाहूँगी। So Joyville का अगर मैं विजन एंड मिशन के बारे में बात करूँ, so इनका फोकस इज वेरी क्लियर. So they want to target a major 80%, 80-90% of income group, which is mid segment income group. ठीक है? So there was a gap. If I talk about, let's say 7-8 years back, in any if you go in any market, any region of India, so there was a gap. So client or maybe buyers don't have trust with the brand because there are multiple incidents. कुछ ना कुछ चीजें होती थी, प्रोजेक्ट्स रुकता था, कुछ ना कुछ चीजें प्रॉब्लम होती थी, ठीक है. बट दिस मिड इनकम वाला जो ग्रुप था, इनको एक दे वांट सेफ्टी सिक्योरिटी. देयर वर मल्टीपल ब्रांड्स इन लग्जरी सेगमेंट, ठीक है. लग्जरी सेगमेंट का इशू नहीं था, लोअर मिडिल सेगमेंट का भी इशू नहीं था, बट जो मिडिल सेगमेंट जो था, सो उनके लिए कुछ ब्रांड्स, रियल एस्टेट में कुछ ब्रांड्स नहीं थे. सो जॉयविल का एक ही मिशन है कि टू मीट दिस गैप, ठीक है, टू मर्ज दिस गैप, और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है उस एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट किया जाए विद द लेगेसी, विद द ब्रांड थिंग एंड विद द क्वालिटी. जॉयविल के बारे में बताया, तो इसका पुणे मार्केट में कहाँ प्रेजेंस है? ओके, सो जॉयविल अंडर SPRE इनके दो जगह पे प्रेजेंस है इन पुणे मार्केट एज ऑफ नाउ. वन इज इन ईस्ट पुणे
near Hadapsar. Second is in West Pune, which is in Hinjewadi. Okay. East Pune में अगर मैं बात करूँ, around 200 acre plus area we have over there. And in West Pune we have around 100 plus acres. ठीक है. Okay. There is one more project under SPRE belt. So that is in Baudan. Many of us maybe might aware about that. So that's one hour. That's more than Okay. 1,000 acre of land. So we have as of now 3 projects, 2 under Joyville, 1 under SPRE. ओके ओके सो आज हम एसपीआरई के जॉयविल के वेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. वेस्ट में जो अभी आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, Correct. हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. Okay. या So अगर मैं बात करूँ वेस्ट पुणे में, so वेस्ट पुणे में we have a project in हिंजेवाड़ी. ठीक है. So हिंजेवाड़ी लोकेशन तो सबको पता ही है. Yeah. ठीक है. हिंजेवाड़ी लोकेशन में we have a project. So 100 acres का टोटल लैंड पार्सल है. उसमें अभी करंट ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है सेंचुरियम. ठीक है. ओके The project name itself gives you idea about why the name is Sensorium. Sensorium name ये इसके लिए because we have something to cater for all your senses. ओके So it is regarding with your senses. The project पूरा जो प्रोजेक्ट का जो थीम है, it is revolving around senses. ओके ठीक है. सो इसमें कितने टावर्स आ रहे हैं, आपने इसका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे रखा है? Okay. सो दैट आई वुड लव टू नो. ठीक है. So प्रोजेक्ट का अगर मैं थोड़ा ब्रीफ अगर आइडिया दे दूं, the project is of around 10.5 acres का डेवलपमेंट. ठीक है. It's majorly into slightly a premium segment. If I talk about micro market, in 10.5 acres we have only 9 towers. ठीक है. So 9 towers are also in 3 cluster. One is 3 tower cluster, second is 4 tower cluster, third one is 2 tower cluster. ठीक है. So this micro cluster also gives you multiple advantage that we talk on later. ठीक है. अभी इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, around 1150 plus flats that we have over here, and the structure is 2 level of car parking and 21 habitable floors. So if we talk about the entire thing, so 10.5 acre, मोटा मोटी 11,500 flats. So the density is around 105, 110. So it makes the low density project of this entire micro market. ओके एंड इसका पोजीशन कब तक है? ठीक है. So as I have said, so there are 3 cluster. So first cluster जो है इसका position we have already started. ठीक है. The second cluster will start its position by next year mid, next year end. The last position that we have is in 2026. So 2026 में the entire project with all kinds of amenities will be delivered. will be delivered. Okay, that's really great. So इसमें क्या क्या configurations है and उनका pricing strategy आपने कैसे रखा है वो बताइए थोड़ा. ठीक. जो प्रोजेक्ट अभी फिलहाल जो ऑनगोइंग जो चल रहा है सेंसोरियम. सो सेंसोरियम हैज 2 BHKs, 3 BHKs, and then we have जोड़ी options as well. Okay. ठीक है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 units of 2 BHK और 1 unit of 3 BHK and 1 unit of 2 BHK as well. ठीक है. करंटली अगर मैं अभी फिलहाल ऑप्शंस के बारे में बात करूं, Yeah. so 702 square feet का carpet area, that's our one type of 2 BHK. The second one is slightly bigger, we call it as a 2 BHK royal. So that's around 800 square feet of carpet area, मोटा मोटी 790 square feet of carpet area to be precise. And the 3 BHK that we have, it's around 980 square feet of carpet area. ठीक है. If I talk about on the pricing part, the 2 BHK luxury, which is 702 carpet area, starts somewhere around from 90 lakh rupees all inclusive, and it goes up till around 94-95 lakh rupees, including everything. ठीक है. The bigger 2 BHK starts from 1.02 CR and it goes up till 1.08 CR. And if you talk about 3 BHK, it starts from 1.29 and goes up till 1.36. So now if you see the pricing, it is there in the belt of around 40, 45, 50 lakh rupees के बीच में we have all the type of houses. Okay, तो आपने जैसे वो मुझे पता है सेकेंड वन दैट इज रॉयल वन. Correct. तो मुझे उसके बारे में थोड़ा जानना है. So the 2 BHK royal, इसका thought process जो था, so how we have come down to 2 BHK royal का मतलब कैसे configuration ये करना चाहिए. So पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी 2 BHK रॉयल जो है, इट इज एज गुड एज 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन वाइज. इफ यू सी रूम साइजेस वाइज या लिविंग का एरिया, अगर मैं किचन का एरिया बात करूं, सो इट इज फॉर दोज हु वांट टू बाय अ 3 BHK just because to have bigger kitchen, bigger living area and 1 big bedroom, but they really don't require 3 bedrooms.
So it is for those. I mean, the TG is those client. सो Okay. जो बड़ा घर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो बड़ा घर एक्चुअली वो 2 BHK में उनको वो रूम साइजेस या वो जो साइजेस जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं किचन में या लिविंग एरिया में वो नहीं मिल पा रहे, तो फिर इसके लिए वो उनको 3 BHK में शिफ्ट होना पड़ता है. बट 3 BHK का प्राइसिंग या बजट थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो इसकी वजह से हमने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो आपको 3 BHK के ही साइजेस आपको 2 BHK में दे देगा. दैट्स रियली नाइस. मतलब देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स की Correct. जब आप टारगेटेड कस्टमर्स को आप देखते हैं तो किसी को लाइक सम पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद द 3 BHK बट Absolutely. दे कैन लाइक 2 BHK में वो रॉयल में जाके उनका वो कंफर्ट देख सकते हैं. करेक्ट. एक्चुअली हमें और एक चीज मिस नहीं करनी चाहिए इसमें. इट इज वेरी इजी टू बाय लेट्स से 3 BHK भी अगर मैं बात करूं, बहुत सारे क्लाइंट्स जो है आई मीन द फाइनेंशियल्स एंड एवरीथिंग अलाउज देम टू बाय अ 3 BHK. तो 3 BHK खरीदने का प्रॉब्लम नहीं है, उसको मेंटेन करना सारी चीजें. यू नो द करंट सिनेरियोज ऑफ मेड नहीं मिल पा रही है, फिर वो 3 BHK बड़ा घर, फिर उसको मेंटेन करना, वो एक्चुअली रूम यूज भी नहीं कर रहे, तो वो सारे चैलेंजेस फेस करने की जगह पे 2 BHK व्हाई नॉट अ गुड साइज ऑफ 2 BHK. 2 BHK रॉयल. या ये बहुत अच्छा आइडिया जॉयविले ने जो प्रपोज किया है. इट्स रियली नाइस. ओके, तो हिंजेवाड़ी लोकेशन जो है, हिंजेवाड़ी लोकेशन के रेसिडेंट्स के लिए क्या फायदा है एंड जॉयविले सेंसोरियम जो है इसकी प्रॉक्सिमिटी एडवांटेजेस क्या है लोकेशन के, तो दिस आई वुड लव टू डिस्कस. ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं हिंजेवाड़ी लोकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो हिंजेवाड़ी जो लोकेशन है ना, ये इमर्जिंग पोटेंशियल लोकेशन है, ठीक है. सो एंटायर IT एरिया यहाँ पे अभी मतलब पूरा डेवलप हो रहा है. FIV हैज ऑलरेडी डेवलप्ड एंड अपकमिंग अभी और भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है. मेट्रो इज कमिंग, ठीक है. बिकॉज ऑफ मेट्रो हिंजेवाड़ी इज नाउ वेरी क्लोजर टू एंटायर सिटी एज वेल, बिकॉज मेट्रो गिव्स यू दैट कनेक्टिविटी. तो ये सारी चीज़ों के अपने एडवांटेजेस हैं. प्लस हिंजेवाड़ी एज अ लोकेशन, ये अगर मैं बात करूँ, दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट पोटेंशियल मार्केट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. So if I talk about जो आपका मुंबई पुणे बैंगलोर हाईवे on the right hand side, if I talk about on that side like Wakad, Baner, Balewadi or Aun, at that area na, so that has already developed. That starts its development 5-10 years back, ठीक है. वो development अभी almost on the verge of completion, ठीक है. So वहाँ पे कुछ लोग मतलब many residents have not got what they want. Why? Because of the area वहाँ पे लिमिटेड था, ठीक है. सो पहले के कुछ घर ऑलरेडी थे, लोग रहते थे, दे हैड देयर ओन हाउसेस, तो वहाँ पे ओपन लैंड पार्सल काफी कम था. फॉर अ डेवलपर लाइक शाहपुर जी और एनी ए ग्रेड डेवलपर, दे वांट अ एरिया, ठीक है, टू डिजाइन एज पर देयर थॉट प्रोसेस. सो 100 एकड़ प्लस एरिया, सो इसको हम अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे. तो ये डिजाइन करने के लिए हिंजेवाड़ी वो लोकेशन एक बहुत अच्छा एक लोकेशन है. ये लोकेशन के अपने एक एडवांटेज है, जैसे एम्प्लॉयमेंट वगैरह सारी चीजें नियर बाय है, तो ये चीजों का अपना एक फायदा है, ठीक है. अगर ये सब में इफ आई टॉक अबाउट वेयर इज जॉयविल, सो जॉयविल का हमारा एक एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे, अगर मैं इसका बात करूँ, सो हिंजेवाड़ी मेजरली पुणे में जो भी लोग रिलेट कर रहे हैं या जो भी आपके ऑडियंस है उनको पता होगा. सो हिंजेवाड़ी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सो फर्स्ट इज हिंजेवाड़ी फेज 1, सेकंड इज हिंजेवाड़ी फेज 2, third one is Hinjawadi phase 3, ठीक है. We are closer to Hinjawadi phase 1, ठीक है, but at a such location, from this location, if anyone wants to go to let's say Hinjawadi phase 1, it's hardly 5 minutes, ठीक है. If anyone wants to go to phase 2, so it's hardly 5 to 10 minutes. I am considering traffic as well. And if anyone wants to go to phase 3, so it's around 10 to 15 minutes. This location gives you a higher advantage to have 3 connectivities to highway. So you can connect to Bhumkar Chowk, Wakad Chowk and Baner as well. So Baner is also in the close proximity of 5.5 to 6 kilometer. So it is in the center, it is in the heart of the Hinjawadi. So यहाँ पे वो एक चीज का आपका बहुत बड़ा advantage है. As you know, all the residents or all the TG, all the clients that we have are majorly from IT and all this majorly. So उनके लिए strategically क्यों है? Because from this location, the travel to office is very convenient, and travel to let's say towards city or maybe highway is also very easy. क्योंकि आपने जैसे बताया कि considering the traffic, so एक IT person या फिर कोई भी ऑफिस गोइंग पर्सन के लिए I don't think so कि
एक ट्रैफिक ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है आज के, exactly. बिकॉज रीचिंग ऑफिस ऑन टाइम, ऑन मीटिंग्स रहते हैं, बहुत कुछ रहता है. सो आफ्टर कंसिडरिंग द ट्रैफिक टाइम ऑल्सो आपने 10 to 15 मिनट्स बताया. करेक्ट. क्या है, जॉब इज वन थिंग बट वी हैव टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस आफ्टर द ऑफिस. अगर आई एम गेटिंग एवरीथिंग बट मुझे ट्रैवल करने में ही एक एक घंटा लग जा रहा है, सुबह 1-1.5 घंटा, शाम को 1-1.5 घंटा, आई एम वेस्टिंग माई 3 2.5 से 3 घंटा इन ओनली इन ट्रैवलिंग. ठीक है. सो इतना ट्रैवल करके देन यू गेट स्ट्रेस्ड आउट, फिर फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजें, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. So why not to stay near your office? Why not to have all kinds of amenities? Why not to have all of this with a brand like Shapoorji Pallonji? That too in budget. Yes, absolutely. Yeah. Okay, तो आप मुझे इसके थोड़ी amenities के बारे में बताएंगे. थीम बेस्ड गार्डन मैंने सुना है. Correct. IT प्रोफेशनल्स के लिए, तो इसके बारे में हम अभी थोड़ा डिस्कशन करेंगे. ठीक है. हम इन डिटेल एमिनिटीज में अगर जाएंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट आएगी. ठीक है. बट मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें थोड़ा प्रोजेक्ट को एक अलग बना रही है. ठीक है. सो प्रोजेक्ट में एक 2.89 एकर्स का मल्टी लेवल संकन गार्डन है. क्लोजली अप्रोक्सीमेटली 3 एकर्स का एक मल्टी लेवल संकन गार्डन है. व्हाई इट इज मल्टी लेवल? सो इट्स अ स्टेप डाउन गार्डन. फ्रॉम एवरी लेवल यू विल बी हैविंग अ व्यू ऑफ रिवर एंड हिल. ठीक है. एक ही लेवल पे हमने पूरा वो मतलब केओस नहीं किया है. इट्स एट अ डिफरेंट लेवल. सो डिफरेंट लेवल्स भी अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से, अलग अलग टाइप ऑफ एमिनिटीज के हिसाब से. जैसे प्ले एरिया एंड जॉगिंग ट्रैक ये एक अलग लेवल पे है. आपका एम्फी थिएटर एक अलग लेवल पे है, जहाँ पे आपकी मतलब एक्टिविटीज होंगी एज अ प्रोजेक्ट. जो आपकी एक्टिविटीज होंगी जस्ट लाइक गरबा और मे बी गणपति, उसके लिए जो सेंट्रल लॉन हमने बनाया वो एक अलग लेवल पे बना है. ओपन जिम, मेडिटेशन डेक ये एक अलग लेवल पे है. स्केटिंग रिंग एक अलग लेवल पे है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गार्डन दैट वी हैव, 3 थीम गार्डन. फर्स्ट इज फ्लोरल गार्डन, सेकंड इज एरोमेटिक गार्डन, थर्ड वन इज योर आपका, अगर मैं बात करूँ इसके हिसाब से हमने गार्डन बनाया है आपका आयुर्वेदिक, जो भी ट्रीज वगैरह जो है उसका भी हमने एक गार्डन बनाया है. सो ऐसे 3 थीम गार्डन हमने वहाँ पे बनाए हुए हैं. तो इस तीनों का एक अलग अलग अपना एक फायदा, और तीनों एक ही जगह पे हमने नहीं बनाए, तीनों के अलग अलग लोकेशंस हमने बनाए. सो थीम जो है प्रोजेक्ट की, जैसे मैंने पहले बोला था, इट इज टुवर्ड्स सेंसेस. वी हैव समथिंग टू कैटर टू ऑल योर सेंसेस. वी हैव बारबेक्यू हैंगर. अगर मैं आपके टच के सेंसेस के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, सो वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक है of 850 meter. Now it's not a regular jogging track, it's a reflexology path, so with the acupressure points. Oh, wow. So that is for a touch thing. For smell and all those things we have aromatic garden. For taste we have barbecue hanger, so where you can cook or something like that. So all those things we have taken care. That's really nice. And इसमें जो आपने मुझे वो आयुर्वेदिक का बताया, plants, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए. So there are 75 plus trees that we have, plants that we have planted. ठीक है. तो इसमें कैसा है कि जस्ट एक नेचर के हिसाब से हमने एक थॉट प्रोसेस किया है कि 3 टाइप के गार्डन इसके लिए हमने बनाए, कि समथिंग रिलेटेड विथ फ्लावर्स, समथिंग रिलेटेड विथ फ्रेग्रेंस, समथिंग रिलेटेड विथ दिस थिंग आयुर्वेदिक थिंग. ठीक है. तो इन तीनों गार्डन के अपने अपने यूएसपीज है. ठीक है. तीनों गार्डन के अपने अपने फायदे हैं जो वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनको मिलेंगे. इट्स रियली गुड टू सी कि कोई प्रोजेक्ट इतना एक बहुत मेजर पार्ट प्लांट्स के लिए, एक एनवायरनमेंट के लिए डेडिकेट करता है. डेडिकेट क्या है एनवायरनमेंट को, तो इससे मुझे लगता है कि आपके जो रेसिडेंट्स है एंड इनफैक्ट नियर बाय रेसिडेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होने वाला है. सो दिस इज़ रियली अ गुड थिंग. अब इसके बाद में मैं जानना चाहूँगी कि IT प्रोफेशनल्स के लिए आपने क्या रखा है. जस्ट एज यू नो, हिंजेवाड़ी इज completely an IT area. Correct. So for the IT professionals ना, so एक क्लब हाउस हमने जो बनाया. So if I talk about the club house size as well, it's a 27,000 square feet, more than half an acre of club house. Okay. If you talk about project specific club houses के बारे में बात करेंगे, it is one of the biggest club house of the entire micro market. ठीक है.
अभी इसमें कुछ कुछ चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने बाहर देखा, हमने गार्डन में देखा कि एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ हेल्थ एंड ऑल दोस थिंग्स, या उस पर्सपेक्टिव हमने बनाए. सो जस्ट लाइक दैट इनसाइड अगर मैं बताऊँ क्लब हाउस के अंदर, सो देयर इज अ फुल इक्विप्ड जिम plus cardio and all those things are there. Then there is a for IT professional we have provided work from space as well, where they can work. So we have recently seen कि work from home वगैरह वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है. सो जैसे हम फिर से अगर इसको पीछे लेके जाएंगे, जो हमने बात की थी कि पीपल आर बाइंग 3 BHK, बट वो 3 बेडरूम यूज नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें का एक बेडरूम वो एज अ वर्क फ्रॉम होम बना रहे हैं, एक बेडरूम का वो एज अ किड्स बेडरूम यूज कर रहे हैं. बट ये सारी चीजें मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है. सो इंस्टेड ऑफ दैट दे कैन बाय अ बिगर 2 BHK. They can use both the bedrooms for their own purpose and they can work in the clubhouse as well. So clubhouse में हमने उनके लिए वर्क फ्रॉम होम का एक जगह बनाया. They can use that thing. Clubhouse में और बाकी चीज़ें अगर मैं बताऊँ, we have a 5D miniplex as well. It's a 5D theater with moving chairs and everything, where you can watch movies, videos. You can enjoy this with your families. So वो भी चीज़ हमने बनाई. There are multiple छोटी मोटी चीज़ें, as I've said, कि अगर मैं एमिनिटीज के बारे में बात करूंगा तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा. करेक्ट. सो अभी जो मेरे जो व्यूअर्स है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहीं पे आके एमिनिटीज को एक बार एंजॉय करेंगे. करेक्ट. यहाँ पे आके जो उनके आपके जो भी टीम है उनको बताएंगे एमिनिटीज के बारे में. तो मुझे लगता है कि अभी के लिए हम उसको यहीं तक. करेक्ट. बाकी की और ज्यादा एमिनिटीज के बारे में जानना है तो यू हैव टू विजिट द साइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड देन वी कैन डिस्कस कि कौन सी एमिनिटीज, क्या सारी चीजें, क्या आपको कैसे बेनिफिट कर सकती है. तो आओ एंड देखो एंड बेनिफिट लो. तो इसके जो सेंसोरियम जो आपका प्रोजेक्ट है, इसके यूनिक फीचर्स के बारे में आप बताइए थोड़ा. ठीक. सो सेंसोरियम के बारे में अगर मैं बताऊँ, सो सेंसोरियम में एमिनिटीज वगैरह तो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली. ठीक है. डिज़ाइन के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो फिर से हम एक बार अगर मैं बात करूँ कि शाहपुर जी पैलेस जी कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन से इफ़ यू रिमेंबर हम रियल एस्टेट में आए. रियल एस्टेट में क्यों आए? टू मीट द गैप एंड ऑल दोस थिंग्स. सो इसमें हमने एक बहुत बड़ा गैप जो हमने देखा था, इट इज़ अबाउट डिज़ाइंस. ठीक है. सो कन्वेंशनल डिजाइन्स बनते हुए आए अभी तक. ठीक है. सो एक टावर होता है जिसमें 8 या 6 फ्लैट्स होते हैं. बाजू में दूसरा टावर होता है, उसके बाजू में तीसरा टावर होता है, सामने टावर्स होते हैं, लग कर टावर होते हैं. ठीक है. या तो एक सी शेप बना देंगे या तो एक स्क्वायर शेप बना देंगे और सेंटर में आपकी पूरी एमिनिटीज बना देंगे. ठीक है. अभी ये चीज का चैलेंज क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेसी. ठीक है. ये वाला जो है, ये वाले टावर्स के बीच में से देख सकता है. सेकेंड चीज का जो चैलेंज होता है वो आपका होता है लाइट, वेंटिलेशन, वो सारी चीजों का चैलेंज होता है. टू ओवरकम ऑल दिस चैलेंजेस, शाहपुर जी पैलेस जी ने हमने एक एज अ डिजाइन में एक चेंज किया. सो वी कॉल इट एज अ एरोडायनेमिक डिजाइन. Okay, aerodynamic. So it is like an aeroplane. So why it is aerodynamic design? It is related with something aeroplane. So as you know, aeroplane has 2 wings on the left hand side, one on the right hand side, and there is a front hand side. So just like that kind of triangular shape mein we have created the towers. So where you have 3 wings. Okay? Each wing will have only 2 flats. So there are 2 flats on the front hand side, 2 flats on this side, 2 flats on this side. Because of all this, so the lobby is shared by only 2 flats. ठीक है. अभी इसका और एक एडवांटेज क्या होता है? So it is open. Yeah. So it's a 2-side open apartment wherever you buy in this wing. ये wing में कोई भी wing में आप खरीदेंगे तो हर wing में आपका it's a corner flat. So and इसमें हमने और एक चीज जो है हमने डिफरेंशिएट नहीं किया कि 2 BHK को lesser view या ऐसा. We have not done that. 2 BHK, 3 BHK कोई भी फ्लैट अगर आप लेंगे, everyone has this corner का अपार्टमेंट. ठीक है. And same privacy view, everything. Same privacy. अभी इसमें डिजाइन में और एक चीज क्या होता है ना, सो आपका जो किचन है, सो किचन के साथ जो ड्राई बालकनी होता है, इट इज कंप्लीटली ओपन. इट इज नॉट ओपनिंग इन डक्ट. सो आपका नेचुरल सनलाइट एंड वेंटिलेशन जो है वो आपका किचन में भी आएगा. तो ये उसका एक एडवांटेज होता है. दूसरा एडवांटेज ये है कि आपके जो बेडरूम्स है, मास्टर बेडरूम्स की अगर मैं बात करूं, सो मास्टर बेडरूम्स आर कंप्लीटली प्राइवेट. सो मास्टर बेडरूम के बाजू में देयर इज नो अनदर अपार्टमेंट या किसी का लग के नहीं है.
सो मेंटेन द प्राइवेसी एज वेल। सो डिज़ाइन के बारे में जो बता रहा था, तो ये जो 3 BHK के लिए ही नहीं है डिज़ाइन। सो जो एरोडायनामिक डिज़ाइन है इसका फ़ायदा 3 BHK 2 BHK कोई भी टाइपोलॉजी लेंगे आप, हर एक को वो फ़ायदा मिलेगा। तो हमने ऐसा नहीं रखा है कि ओनली 2 BHK विल गेट मतलब पीछे का व्यू वगैरह ऐसा वैसा, और ओनली 3 BHK विल हैव अ बेटर व्यू। इट्स नॉट लाइक दैट। सो हर एक को, हर साइड में आपको प्राइवेसी रहेगा और वो सारी चीज़ें रहेगी। जो किचन का जो मैं बता रहा था, सो किचन में भी कॉर्नर कॉर्नर होने की वजह से किचन विल हैव गुड लाइट एंड वेंटिलेशन, इट इज़ नॉट ओपनिंग इन डक्ट। बेडरूम्स जो है आपके मास्टर बेडरूम्स, इट इज़ नॉट शेयरिंग विथ अनदर फ्लैट। सो जनरली क्या होता है, सो एवरीवन हैज़ देयर प्राइवेसी। सो आपके जो बेडरूम्स है वो कम्प्लीटली कॉर्नर वाले साइड में, देयर इज नो अनदर अपार्टमेंट, वो साइड में किसी का फ्लैट नहीं है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है ये आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरोडायनामिक डिजाइन की आपका फायदा है, ठीक है। एंड ये आपने हर लाइक एवरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेम प्राइवेसी एंड सेम व्यू को आपने माइंड में ध्यान में रख के आपने सब किया है। सो जैसे मैंने बोला कि ये हमने कोई एक स्पेसिफिक टाइपोलॉजी के लिए नहीं रखा, हमने ये सबके लिए रखा, सबके लिए रखा है। ये हुआ अपना एक यूनिक फीचर, ठीक है। सो दिस इज ओनली वन यूनिक फीचर, देयर आर मोर। इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड यूनिक फीचर, सो अभी बहुत सारे बड़े बड़े टाउनशिप्स या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं आपके, 10-10 15-15 एकड़ के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, 5-6 एकड़ के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। अभी इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो एज अ रेसिडेंट्स जो हमने नोटिस किया, जो वो मतलब जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, यू हैव एंटरिंग, मतलब कार आती है, फिर कार जो टावर है वो टावर के वहाँ पे पार्क होती है, ठीक है। पार्किंग कुछ ऊपर होती है, नीचे होती है, मशीन पार्किंग होती है, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी, बच्चे खेल रहे हैं वो गार्डन भी वहीं पे होता है। तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा एक सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है टुवर्ड्स किड्स, ठीक है। दूसरा थोड़ा पार्किंग का कंसर्न आ जाता है, किसी को कैसे पार्किंग मिलेगी वगैरह, वो एक सेकंड कंसर्न आता है। टू रिजॉल्व ऑल दिस, सो व्हाट वी हैव डन ना, 10.5 एकड़ का जो पूरा प्रोजेक्ट है, 98%, I'll again repeat, 98% of the entire land parcel is vehicle free zone. So आपको कहीं पे भी गाड़ी नहीं दिखने वाली, आपको गाड़ी सिर्फ स्टार्ट में गाड़ी या तो आते वक्त या तो जाते वक्त दिखेगी, that's it. The entire land parcel is vehicle free zone. अभी vehicle free zone का फायदा क्या है? How it is vehicle free zone? So vehicle free zone का आपका फायदा ये है कि it is there won't be any kind of noise pollution, एयर पोल्यूशन आपका नहीं होगा, ठीक है। इफ योर किड्स आर प्लेइंग तो आप इट इज सेफ, बिकॉज जो आपका पूरा पोडियम है वो इंटरकनेक्टेड है। कार जो है आइदर रैम्प डाउन या रैम्प होकर, जो भी आपका टावर है वो टावर के वहां पे जाकर पार्क होगी, और जो ऊपर का पूरा पोडियम है वहां से और कार का एक दूसरे से देयर इज नो कनेक्शन, नो इंटर रिलेशंस। तो आपके बच्चे जो है वो पोडियम पे खेलेंगे, सीनियर सिटीजन जो घूमेंगे, वो सब कुछ जो है वो पोडियम पे रहेगा, और कार पार्किंग सब कुछ जो है उसके नीचे रहेगी। ओके, ये आपने ये सेफ्टी सेंट्रिक भी बनाया है। करेक्ट, ये उसका सेकंड एडवांटेज आपका यूनिक फीचर्स में हुआ, ठीक है। आई जस्ट नेम फ्यू। सो थर्ड यूनिक फीचर्स अगर मैं बात बताऊं, सो देखिए, नंबर ऑफ एमिनिटीज एवरीवन इज गिविंग, ठीक है। बट जैसे हमने टावर का भी क्लस्टर वाइज डेवलपमेंट किया है, 3 टावर 4 टावर 2 टावर, वैसे हमने एमिनिटीज का भी क्लस्टर वाइज डेवलपमेंट किया है। सो जो भी आपकी पैसिव एमिनिटीज है, लाइक लेजर एमिनिटीज, जहाँ पे बच्चे खेलेंगे, छोटे बच्चे खेलेंगे, कुछ आपका एक्टिविटी होगा, प्रोजेक्ट का एक्टिविटी, अगर कुछ सोसाइटी की कुछ एक्टिविटी वगैरह करना है वो चीज़ है, या जैसे गार्डन वगैरह है, ये एक अलग लेवल पे है, ये आपका आ गया पोडियम लेवल, ठीक है। सेकेंड जो है वो आपका आ गया क्लब हाउस के साथ आपका आ गया स्विमिंग पूल, वो हो गया एक अलग क्लस्टर। थर्ड वन जो है आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो वो एक अलग क्लस्टर। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्लाइटली जो आपकी बिल्डिंग्स है उनसे थोड़ा सा दूर है, सो दैट खेलते वक्त जो नॉइज होगा दैट विल नॉट हैम्पर द रेसिडेंशियल स्पेस। सो वहां तक हमने छोटा छोटा, अगर मैं बात करूं तो इतना इन डिटेल हमने सोच के ये प्रोजेक्ट बनाया। बहुत अच्छी बात है कि मतलब एक एक चीज़ को आपने ध्यान रख के, वेदर अगर हम देखेंगे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है या किड्स के लिए है या फिर आईटी प्रोफेशनल्स हो गया या हेल्थ केस में, तो आपने ये हर चीज़ को कवर किया। एंड इट्स रियली गुड टू सी कि कोई प्रोजेक्ट या कोई डेवलपर इतना सोच रहे हैं उनके रेसिडेंट्स के बारे में। इट्स रियली गुड। करेक्ट। तो अभी मैंने काफ़ी लोगों से सुना
लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, हम्म। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए मुझे अभी। अभी अगर मैं बताऊँ इसको एलेबरेट अगर मैं करूँ, अगर जो भी प्रोजेक्ट्स अभी मार्केट में बन रहे हैं, डेंसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या हो रहा है ना, आजकल जो भी बायर है, सो बायर की कुछ चीजें जो गलती हो रही है, ठीक है, कुछ चीजें जैसे गलती हो रही है वो हो रही है कि he comes to the site, he understand the sample flat, he understand few details about amenities, and if he likes all this, then he go ahead. Okay, there are multiple things which he should understand about project design, about how they have used amenity space, residential space, open space कितना है। अभी ओपन स्पेस सिर्फ ओपन स्पेस से लिमिटेड नहीं है। अभी इसमें जैसे आपने बोला कि लो डेंसिटी, ये लो डेंसिटी क्या रोल प्ले करेगा? एवरीवन वांट्स टू स्टे कि एक हाई फ्लोर राइज टावर्स में मेरे को रहना है, बट जितने ज्यादा ऊंचे आपके टावर्स रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपके नंबर ऑफ फ्लैट्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर नंबर ऑफ फ्लैट्स भी ज्यादा है, टावर की हाइट भी ज्यादा है और लिफ्ट्स भी कम है, सो जस्ट इमेजिन पीक आवर्स के टाइम पे व्हेन यू वांट टू लीव फॉर द ऑफिस, सो आपको 5-5 10-10 मिनट फॉर अ लिफ्ट आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, यहाँ पे हमने वैसा नहीं किया है। सो 6 फ्लैट्स, 3 विंग्स, हर विंग के लिए एक आपकी लिफ्ट रहेगी, सो काइंड ऑफ, बट तीनों लिफ्ट्स आपकी इंटीग्रेटेड होगी एंड इट्स ओनली 21 हैबिटेबल। Okay. So मोटा मोटी if I have to give you idea, around only 120 अपार्टमेंट्स के लिए, 120-125 अपार्टमेंट्स के लिए एक पूरा टावर रहेगा जिनके लिए 3 लिफ्ट रहेगी। So there is one more feature that we have is EDGE certification. This project has received EDGE certification का प्री सर्टिफिकेशन मिला। There are 2 types of certification. जब अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तब एक प्री सर्टिफिकेशन होता है, और जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है फिर उसको EDGE सर्टिफिकेशन मिलता है। So we have received a pre-certification for this project. So ये EDGE certification के बहुत सारे फायदे होते हैं। So it's related to efficiently design, मतलब पूरा जो डिज़ाइन जो है वो इफिशिएंटली डिज़ाइन किया हुआ होना चाहिए, तो जो हमने किया है। प्लस एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी जो वेस्ट होता है, वेस्ट मैनेजमेंट बोलिए या आपका इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट बोलिए, वो सारी चीज़ें उसका वेस्ट रोकने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सो उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है। ऐसा हमने प्रपोज किया था, पहले डिज़ाइन को हमको प्री सर्टिफिकेशन मिला है, अभी हम ये जब सब कुछ कंप्लीट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट को EDGE सर्टिफिकेशन मिलेगा। देयर आर मल्टीपल सर्टिफिकेशन, जिसमें से ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन होता है, दैट इज EDGE सर्टिफिकेशन। तो इसका कॉस्ट पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? इसका कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं होता है। इसका जब आपका मेंटेनेंस जब होता है प्रोजेक्ट, वंस दिस इज हैंडेड ओवर टू द सोसाइटी, कुछ चीजें जो होती है ना इनटेंजिबल होती है, जो आपको सिर्फ घर इज नॉट ओनली अबाउट कारपेट एरिया एंड एमिनिटीज, देयर आर मल्टीपल इंटेंजिबल थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड। सो दिस इज वन ऑफ दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल थिंग। सो जब भी आपका प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, सारी चीजें होगी, उसके बाद जब प्रोजेक्ट आपको मेंटेन करने पे आएगा, सो जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो ये सारी चीजें जो आपको लगेगी, उसमें आपको ये चीजें तभी हेल्प करेंगी। उस चीजों का हमने पहले से ही कंस्ट्रक्शन करते वक्त ही ध्यान रखा। तो जैसे आपने वर्ड यूज किया इंटेंजिबल, तो एक होम बायर जो होता है उसको बिफोर बाइंग अ होम क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए? सो देखिए, 2 हिस्सों में इसको मैं डिवाइड करूंगा। एक जनरल मिस्टेक जो एक हर कस्टमर जो कर रहा है, ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए, एक्चुअली क्या देखना चाहिए उसको, ठीक है। सो फर्स्ट इज टेंजिबल। इसमें 2 चीजें, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल चीजों में क्या आता है, एक कस्टमर आता है, ऑफिस में आता है, ठीक है, वो एक जब भी घर देखने आता है तो वो सिर्फ घर रिलेटेड होता है, तो वो देखता है अपना कारपेट एरिया कितना है, मुझे घर के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही है, मुझे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या एमिनिटीज मिल रही है, और एक सैंपल फ्लैट देखकर ही टेक्स हिज डिसीजन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जो दिख रहा है, सो टेंजिबल इज जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। देयर आर मल्टीपल इनटेंजिबल थिंग्स जो एक्चुअली उन्होंने देखनी चाहिए, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट जो चीज है, जहाँ पे सब लोग गलती करते हैं, दैट इज लीगल। सो देयर आर मल्टीपल अलग अलग टाइप के लैंड पार्सल्स होते हैं, ठीक है। सो लीगल लैंड, जो भी आपका जो जगह है उसका लीगल सर्टिफिकेशन,
उसका रेरा सर्टिफिकेशन, ये बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि लैंड पार्सल में मल्टीपल टाइप्स होते हैं। प्रोजेक्ट जो है वो हमारा जेवी में है, या हम जिस डेवलपर से बात करें या वही वो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ये भी चीज़ हमें समझनी चाहिए। प्रोजेक्ट जो है वो आपका, उस पर कोई लिटिगेशंस तो नहीं है, उस पर कोई केसेस वगैरह अगर चल रहे हैं तो वो चीज़ें बाद में हमें दिक्कत कर सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हमें ज़रूर समझ में आनी, मतलब ये चीज़ें हमें ज़रूर देखनी चाहिए। और ये मैं नहीं, ये खुद गवर्नमेंट बोल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक रेरा करके प्लेटफॉर्म बनाया, महारेरा करके। सो जिसमें आप कोई भी प्रोजेक्ट का रेरा नंबर अगर आप डालोगे तो उसमें आपको प्रोजेक्ट्स का एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम एवरीथिंग, ब्लैक एंड व्हाइट पूरा पिक्चर जो है वो आपको क्लियर समझ में आएगा। एंड आफ्टर सीइंग ऑल दोस थिंग्स देन यू शुड टेक डिसीजंस। सो डिसीजंस ऑफ एनी मतलब जो प्रॉपर्टी परचेज जो है, इट शुड नॉट बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फूमो। सो आज जो डिसीजंस जो हो रहे हैं वो सिर्फ फूमो पे हो रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मुझे घर नहीं मिलेगा, मुझे घर नहीं मिलेगा, बस ये चीज़ों की वजह से मतलब भीड़ हो रही है, वो सारी चीज़ें हो रही है। आई डू अंडरस्टैंड ऑल दोस पॉइंट्स, ठीक है, प्री लॉन्च है, चॉइस ऑफ इन्वेंट्री मिलनी चाहिए, मल्टीपल चीज़ है, ठीक है, बट इसके साथ एक हमें ये चीज़ भी बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए कि जो पैसे मैं डाल रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट में समझ में आ रहा है, जहाँ पे मेरे को घर लेना है, वो सारी चीज़ें ठीक है, मैं एक बार लीगल वगैरह जो चीज़ें थ्रेट हो सकती है, जो चीज़ें प्रोजेक्ट को बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो भी मैं चीज़ें ज़रूर समझ में आनी चाहिए, वो भी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। ओके, तो मतलब ये सारी चीज़ें एक बिफोर बाइंग अ होम, ये जो आपने बताया कि लिटिगेशन तो नहीं है, रेरा, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने बताई हैं। करेक्ट, इसी चीज़ों की वजह से जहाँ पे भी जो मिस्टेक हो सकती है कोई भी बायर से, वो यहाँ पे हो सकती है। देखिए, डिज़ाइन वगैरह ऑल दिस थिंग्स, ये आज ना कल बन सकती है। हर कोई नॉट 100% बट इफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकता है, सब कुछ बन सकती है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बन सकती है, बट लीगल जो चीज़ है, जो एक्चुअली डेवलपर के भी कंट्रोल में नहीं होती, वो चीज़ें एक्चुअली कस्टमर ने जरूर समझ में लेकर, समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो जॉयविल सेंसोरियम में इन्वेस्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं जॉयविल सेंसोरियम के बारे में बात करूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोकेशन खुद एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एज अ हिंजवाड़ी अगर मैं बात करूँ तो हिंजवाड़ी लोकेशन के अपने अपने एक एडवांटेजेस, ठीक है। हिंजवाड़ी लोकेशन का आपका पुणे और बैंगलोर का हाईवे का क्लोज प्रॉक्सिमिटी आ जाता है। इंटरनली यहाँ पे सारे कंपनीज वगैरह है। कुछ चीज़ें अगर मैं बताऊँ, जैसे रिसेंटली हमने पढ़ा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे अभी लैंड पार्सल खरीदा है। सो माइक्रोसॉफ्ट इज कमिंग, ठीक है। मल्टीपल बाकी एमएनसीज भी अभी इन फ्यूचर यहाँ पे प्लान कर रही है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आपका मेट्रो का, सो मेट्रो विल बी फंक्शनल बाय नेक्स्ट ईयर। जस्ट टू गिव यू आइडिया, मेट्रो का भी कंस्ट्रक्शन वी आर कॉन्ट्रैक्टर ओवर देयर। सो शाहपुर जी पालन जी वहाँ पे एज अ कंस्ट्रक्शन पार्टनर भी है। That's So, really nice. as I've said ना, construction में Construction we yeah. are there. थर्ड थिंग, अगर ROI में बात करूँ, सो जॉयविल सेंसोरियम ऐसी जगह पे लोकेटेड है जो उसके सामने से जो रोड जा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अ इंटरनल रोड, गोइंग टू बी 65 मीटर का रिंग रोड, ठीक है। इट इज ऑलरेडी सैंक्शन, उसका काम भी चालू हो चुका है। सो जैसे ये सारी चीजें आपके बन जाएगी, सो आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। So there are two types of ROI. First is return on investment. Second is आपका rental yield. Rental yield तो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपका काफी ज्यादा अच्छा होगा। और एक चीज मैं इसमें अगर मैं बोलूंगा कि जॉयविल सेंसोरियम में डाल पैसा है जो आप इन्वेस्ट करोगे, उसके आपके फायदे क्या है। सो रियल एस्टेट के बारे में अगर मैं बताऊँ, आज फिलहाल सिनेरियो, इट इज वेरी इजी टू एंटर इनटू रियल एस्टेट मार्केट। फ्लैट खरीदना बहुत इजी हो चुका है, बट फ्लैट बेचना ये एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है, जो हमें लग रहा है कि इन फ्यूचर ये जो बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। कुछ जगह पे माइक्रो लोकेशन में ये चैलेंज बन भी चुका है। इस चैलेंज के बारे में हमने ऑलरेडी ध्यान में रखा है। इस चैलेंज को फायदा आपका होगा फिर से वो लो डेंसिटी वाली चीजों की वजह से। व्हेन अ प्रोजेक्ट इज हाई डेंसिटी, बहुत ज्यादा फ्लैट्स है, बहुत ज्यादा क्लटर डेवलपमेंट है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत ज़्यादा जब लोग बेचना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरनल कंपटीशन होगी,
फिर आज मैं फ्लैट बेचना चाहता हूँ, मेरे जैसे 10 लोग फ्लैट बेचना चाहते हैं, मैं फ्लैट पे रेंट पे डालना चाहता हूँ, मेरे जैसे 20 लोग फ्लैट पे रेंट पे डालना चाहते हैं। तो ये सारी सिनेरियोज जॉयविल्स इंश्योरेंस में है ही नहीं। तो ये चीजों का लो डेंसिटी में आपको वहां पे फायदा हो जाता है। ओके। और आपके जो प्रीवियस इन्वेस्टर्स भी रह चुके हैं, तो उनके आरओआईस के बारे में आप थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए मुझे। अभी अगर मैं बात करूं, जो हमारा पहला वाला प्रोजेक्ट था जॉयविल हिंजवाड़ी, सो उसका रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक इन परसेंटेज के अगर मैं बारे में बात करूं, सो लोगों ने यहाँ पे रिटर्न्स एज अ हिंजवाड़ी मार्केट जो रिटर्न चल रहा है 3 साल का, जो रिटर्न जो हुआ है 31% के आसपास रिटर्न लोगों को मिला है 3 इयर्स का। जॉयविल हिंजवाड़ी में यहाँ पे ये जो रिटर्न्स है, ये रिटर्न्स मोर देन 40-50% के आसपास लोगों को रिटर्न्स मिला है in last 3 years, because and I'm saying this is just a start. This is just a start of a curve. There's always a curve, ठीक है, एक कर्व होता है जो आपका प्रॉपर्टी राइज करके जाता है, ठीक है। सो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इन परसेंटेज, सो 31%, 40%, वी आर टॉकिंग इन परसेंटेज। इफ यू वेट फॉर नेक्स्ट लेट्स से 5 years, विल बी टॉकिंग इन मल्टीपल। सो पैसा डबल हुआ है, ट्रिपल हुआ है, या कितना हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। नाउ वी आर वेरी एट द स्टार्ट ऑफ दैट कर्व, इसलिए हम परसेंटेज के बारे में बात करें। सो लोगों ने जो फ्लैट एक बहुत अच्छी प्राइस पे लिए हुए थे, नाउ पीपल आर एबल टू सेल एट वेरी हायर प्राइस, प्लस रेंटल यील्ड भी मिला है उनको, जो उन्होंने रेंटल अर्न किया वो भी चीज़ है। स्टिल वी ऑलवेज सजेस्ट टू ऑल आवर क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स not to sell your property as of now. This is not the right time to sell your property. This is actually a very, very, very good time to buy a property. Okay. तो आप NRI इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज देते हैं? So NRI जो वर्टिकल जो है हमारा, it is very strong. Because as I've said, Shapurji Palanji has a presence in more than 60 plus countries. So जितना ज़्यादा प्रेजेंस है उसके वजह से एक एनआरआई मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है। वी हैव ऑफिसेस इन मल्टीपल कंट्रीज एज वेल। सो एनआरआई हु इज़ नॉट हियर, ठीक है, वो बहुत दूर बैठकर एक इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है या एक पैसा डालने का सोच रहा है। तो इसमें सबसे फर्स्ट थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ट्रस्ट, कि उनको एक ट्रस्ट चाहिए कि जो चीज़ जहाँ पे मैं पैसा डालना चाहता हूँ वो चीज़ वैसे बनेगी, जो क्योंकि ही इज़ नॉट देयर टू सी द डेवलपमेंट ऑन ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो इसकी वजह से एनआरआई के लिए एक ट्रस्ट का जो फैक्टर आ जाता है, तो वो शाहपुरजी पालनजी में पूरा का पूरा टेक केयर किया जाता है कि व्हाई वी आर सुपीरियर, व्हाई ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना वो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। एनआरआई क्लाइंट जो है उनको खुद को बहुत सारी चीज़ें पता है। Plus we provide rental assistance as well. So once the client gets possession ना, तो उनको rental assistance भी हम करते हैं। Okay, that also you provide. So हम उनके फ्लैट जो है वो रेंट पे आगे ये करने के लिए भी उनको हेल्प करते हैं। There are multiple things as a after sale service we do. Okay, तो मेरे व्यूअर्स या फिर मुझे अभी ये नहीं पता था कि आप रेंटल में भी उनको असिस्टेंस करते हैं। Correct. So जिनको ये डाउट है कि मतलब मैं कैसे रेंट, मेरा फ्लैट मैं परचेस तो कर लूँगा बट मुझे आरओआई कैसे मिलेगा, मैं रेंटल से कैसे इनकम कर सकता हूँ, तो शाहपुरजी पालनजी जॉय विलेज की जो टीम है, दे आर हियर टू गिव यू असिस्टेंस इवन आफ्टर सेल्स ऑल्सो। तो पुणे रियल एस्टेट जैसे कि आपने बताया, तो इसमें इन्वेस्टर्स के लिए ग्रोथ पोटेंशियल क्या है? अभी मैं इसको थोड़ा सा बहुत मतलब देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स इन दिस, अगर मैं इसको बाइफरगेट करूँ तो सो वी हैव सीन रियल एस्टेट ग्रोथ इन 4-5 cities रिसेंटली, ठीक है। वी हैव सीन इन मुंबई, बहुत पहले से हमने मुंबई में देखा है, ठीक है, बट मुंबई की प्राइजेस एंड नाउ ऑल द एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट्स आर ऑलरेडी सैचुरेटेड, ठीक है, तो वहाँ पे एंट्री करना है बहुत डिफिकल्ट हो गया है। सेकेंड, वी हैव सीन इन बैंगलोर मार्केट, वी हैव सीन इन हैदराबाद मार्केट एंड दिल्ली एनसीआर, ठीक है। ये
चारों पांचों जो कुछ भी ये मेट्रो सिटीज है, इन्होंने जो रेसिडेंशियल या जो भी आपके रियल एस्टेट के जो रिटर्न्स दिए, उसके दो रीजंस है। फर्स्ट थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कोई भी एक सिटी में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तो आपका उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है रियल एस्टेट पे, ठीक है। सेकेंड चीज जो यहाँ पे जो चेंज लेके आई है वो है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये सब जगह पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। एम्प्लॉयमेंट जैसे क्रिएट हुआ, इंफ्रा जैसे क्रिएट हुआ, तो ऑल ओवर फ्रॉम द एंटायर इंडिया लोग वहां पे आए, स्टे किए, फिर घर खरीदा और वो सारी चीजें। दैट्स हाउ द रियल एस्टेट ग्रो। ये सब में एक कॉमन पॉइंट है, दैट इज आईटी। तो आईटी का जो डेवलपमेंट है ये सारी सिटीज में हुआ है, ठीक है। नाउ इफ यू आस्क एनीवन व्हिच इज द नेक्स्ट सिटी, सो दैट इज पुणे सिटी। पुणे सिटी में अभी जो चीज बन रहा है, सो दैट इज एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। आईटी का पूरा सेक्टर यहाँ पे आ चुका है एंड इट इज स्टिल इवॉल्विंग, ठीक है, इट इज स्टिल कमिंग। तो आईटी सेक्टर जो है अभी तक और आएगा और आगे चीजें बढ़ेगी, ठीक है। और सेकंड, इसके साथ पैरेलली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट क्या कर रहा है पुणे सिटी, ये सबसे डिफरेंशिएट क्या कर रहा है इज वेदर। Okay. So weather in Pune, if you compare it with all the cities, is very pleasant. Yeah. The greenery, it is still there and it will be there. I hope it will be there. Right, We have to keep it like this only. So greenery and all these things will be there. Air quality index की अगर मैं बात करूँ तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। पोल्यूशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे पोल्यूशन and everything is under control. जो चीजें बाकी सिटीज में, बाकी सारे मेट्रो सिटीज में जो लोग फेस कर रहे हैं, अगर मैं इसको रियल एस्टेट ग्राफ में अगर मैं बात करूं, सो 10 साल पहले अगर मैं बात करूं, 10 से 5 साल पहले रियल एस्टेट वाज रिवॉल्विंग अराउंड साइजेस ऑफ द अपार्टमेंट, ठीक है। मुझे मेरा बड़ा घर चाहिए, ठीक है। कितना बड़ा घर है, कितना क्या है, इसके अराउंड घूम रहा था। लास्ट 5 years इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड एमिनिटीज एंड लाइफस्टाइल, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ों के एमिनिटीज, क्या क्या चीज़ों की कैसे मेरा लाइफस्टाइल रहेगा, ये सारी चीज़ों के। एंड नाउ नेक्स्ट 5 years, मार्क माय वर्ड्स, नाउ नेक्स्ट 5 years will be completely on how the project is maintained, ग्रीनरी कैसे है, वहाँ पे पोल्यूशन कैसे कंट्रोल में रहेगा, ये सारी चीज़ों के अराउंड आपका रिवॉल्व करेगा। साइजेस पे से हम अभी लाइफस्टाइल पे आए, लाइफस्टाइल पे से अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स ग्रीन, टुवर्ड्स हेल्थ एंड ऑल दोस थिंग्स। And Shapurji, Palenji and Joyville, we have already taken care of all those things and we have already started that journey. That's why we are always ahead from the competition. Okay, तो आपकी अभी और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनके बारे में मैं और डिस्कस करना चाहूँगी। ठीक है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अगर मैं बताऊँ तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स नॉट ओनली इन पुणे मार्केट, वी हैव प्लान्स इन एंटायर इंडिया, ठीक है। So entire India, we as a Joyville, what I'm saying, as a Joyville, we are already there in Mumbai market, we are already there in Pune market, we are already there in Gurgaon market, we are already there in Kolkata market, ठीक है। Now we will be coming with Thane market, ठीक है, which is in Mumbai only, closer to Mumbai. So we'll be entering to Thane market. We'll be coming one more project in Gurgaon market, ठीक है। We are planning to have a few launches in East Pune as well as West Pune, ठीक है। We are also looking for few land acquisitions as well. So हम और land acquisitions के बारे में सोच रहे हैं because we want to grow this brand exponentially. So we want to grow this exponentially, not rationally, percentage में हमें इसे grow नहीं करना. We want to grow this exponentially क्योंकि there is if I have to see ना, मैं इसके बारे में अगर बताऊँ तो ये काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। जो सेगमेंट हम जो टारगेट कर रहे हैं इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई सिर्फ एक साल में, इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन लेट्स आफ्टर 6 months, सो 6 महीने में मैं और ज्यादा सिटीज और ज्यादा प्रोजेक्ट्स के नाम लूंगा। आज मैं कुछ सिटीज और कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम ले रहा हूँ, 6 महीने में और ज्यादा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर अलग होगा। 1 साल के बाद में इस क्वेश्चन का और ज्यादा अलग आंसर होगा।
ओके मीन्स ये जो ग्राफ है ये ग्रोथ की तरफ है एंड ये और ज्यादा बढ़ता ही करेक्ट, जाएगा। ये ट्रेन एक्चुअली निकल चुके हैं, ये नहीं रुकने ये नहीं वाली, रुकने ये वाली। इसका स्टेशन नहीं आने करेक्ट वाला है करेक्ट ग्रोथ का। करेक्ट। दैट्स रियली नाइस। तो अभी जैसे आपको पता है मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो चैनल पार्टनर्स भी हैं, तो ये मैं क्वेश्चन सबसे करती हूँ, मैं Okay. आपसे भी करूंगी। बोलिए। मेरे चैनल पार्टनर फ्रेंड्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो सारे चैनल पार्टनर्स के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप जो कुछ भी कर रहे हो काफी सोच समझ कर काफी अच्छी चीज कर रहे हो। आपको सिर्फ इसमें थोड़ा सा ना सेल्स कम कर कर एजुकेशन थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, ट्रस्ट फैक्टर, आपको एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना पड़ेगा। सो आज एक जो क्लाइंट है, आज वो क्लाइंट बहुत सारे लोगों के टच में है, ठीक है, वो आप पे क्यों ट्रस्ट करे, इसका रीजन आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करेगा। आप उसको क्या कम्युनिकेट करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो, आपको उसका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि शाहपुर जी पालेंगे पे लोग क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं, बिकॉज 150+ ईयर्स लेगेसी और ट्रस्ट है, इसके लिए आज लोग आग बंद करके पैसा डालते हैं। तो आप आपसे मुझे ये कॉन्वर्सेशन खत्म करने का मन ही नहीं कर रहा है। मुझे एक और क्वेश्चन है अभी। यस, आप क्लाइंट्स को कैसे टेक केयर करते हैं? कि आपने मुझे अभी ये 150+ इयर्स की लीगेसी के बारे में बताया, देन आपने कंस्ट्रक्शन से लेके उनके इस सेगमेंट में, रियल एस्टेट सेगमेंट में आना, देन जॉयविल के बारे में आपने बताया, ईस्ट मार्केट, वेस्ट मार्केट, हमने एक पूरी जर्नी को कवर किया एंड हम आगे और भी करेंगे। देन अभी जैसे आपने बताया कि आप आपके क्लाइंट्स को कैसे केटर करते हैं, आप आपके इन्वेस्टर्स को कैसे केटर करते हैं, मार्केट को, आप आपके चैनल पार्टनर्स को कैसे केटर करते हैं? सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका अगर आंसर अगर मैं दूंगा ना, सो चैनल पार्टनर इज नॉट अ डिफरेंट एंटिटी, इट्स स्टेक होल्डर ऑफ शाहपुर जी पैलेस जो वो जॉयविल के स्टेक होल्डर्स ही है, ठीक है। दे आर वर्किंग ऑन आवर बिहाफ, ठीक है, दे आर रीचिंग टू द क्लाइंट्स वी आर नॉट एबल टू रीच, ठीक है। सो एक्चुअली दे आर हेल्पिंग अस टू ग्रो, ठीक है। तो इनको केटर करने की मतलब अगर मैं बात करूं तो वी हैव अ स्पेशल डेडिकेटेड टीम, सो वो उनसे हमेशा कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। हर एक चीज में बी इट इज रिगार्डिंग नॉट ओनली विद द प्राइसिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, रिगार्डिंग विद आवर न्यू लॉन्चेस एंड ऑल दोस थिंग्स, ये उनके साथ हमेशा टच में रहते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो ट्रस्ट एक चैनल पार्टनर क्रिएट कर सकता है एक क्लाइंट के बारे में, बिकॉज जो मैंने इसके पहले भी बोला कि चैनल पार्टनर ने जो ट्रस्ट क्रिएट किया उसको, एंड चैनल पार्टनर्स ने क्लाइंट को जो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर प्रोजेक्ट्स दिखाए, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर देम एज वेल, फॉर क्लाइंट एज वेल, फॉर डेवलपर एज वेल। और मैं फिर से एक चीज बोलूंगा कि वी डोंट क्रिएट कुछ चीजें अलग। सो देयर इज एन एम्प्लॉय हु इज वर्किंग ऑन शाहपुर जी पालन जी पेरोल, he is also a part of our family channel partner who is actually working for us on our behalf. ये मुझे जान के काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे आपने बताया कि यू बीइंग अ डेवलपर, जैसे आपने बोला कि आप उनको अलग नहीं समझते हैं, दे आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस कंपनी। सो ये जान के काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर कोई डेवलपर इस माइंडसेट से अगर वो काम करते हैं तो आई थिंक जो आपने बोला विन विन सिचुएशन हम सबके लिए होता है, तो ये एक विन विन सिचुएशन होगा सबके लिए अगर किसी डेवलपर का माइंडसेट ऐसा है कि ये चैनल पार्टनर जो है, जैसे कि आपने बताया कि आप चैनल पार्टनर्स को एज अ चैनल पार्टनर ना देख के आप उनको एक फैमिली मेम्बर, एक स्टेक होल्डर जैसे देखते हैं। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे जान के, एंड जो मेरे व्यूअर्स होंगे चैनल पार्टनर्स है या मेरे क्लाइंट्स है, इन्वेस्टर्स है, उनको भी ये चीज़ जान के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि एक डेवलपर कितनी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वो सारी चीज़ें बनाता है। तो मुझे ये लगता है कि मेरे क्लाइंट से सबसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे आइए, साइट पे आइए एंड आके प्लीज़ यहाँ की लग्जरी को फील कीजिए। यहाँ पे जो सेंसोरियम है, जो सेंसेस जो वो फील करते हैं, यहाँ पे आप आइए, देखिए, समझिए कि कैसे इन लोगों ने एक एक चीज़ को ध्यान रखा है आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। सो रियली थैंक यू मिस्टर अजिंक्य, आज आपसे बात करके SPRE के बारे में, जॉयविल के बारे में जान के, पुणे रियल एस्टेट मार्केट के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। एंड मैं और आपको बहुत इतना कट कर देना, मैं
सच में चाहूँगी कि मैं और भी आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करूँ आने वाले टाइम में, जो भी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। आपका टाइम आपने मुझे दिया, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। एंड अभी जैसे आपने मेरे इन्वेस्टर्स के लिए बताया, मेरे क्लाइंट्स के लिए बताया, सबके लिए जो आपने मुझे आज हमने जो इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन किया है, तो उसके बिहाफ में मैं थैंक यू मिस्टर अजिंक्य। इस एपिसोड में आपने आपकी प्रेजेंस जो थी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मेरे शो पे आने के लिए, मेरे चैनल पे आने के लिए। जैसे कि इस मेरे चैनल का जो थीम है रियल टॉक विद अक्षदा, जहां हम करेंगे रियल एस्टेट की बात एक्सपर्ट्स के साथ, तो मुझे SPRE जॉयविल के एक्सपर्ट से बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने आपका टाइम दिया, उसके लिए रियली थैंक यू। एंड अब आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा थैंक यू। फॉर द वेरी बेसिक रीजन। आपने ये मतलब ये जो स्टार्ट किया है, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद क्लाइंट्स, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद चैनल पार्टनर, यू आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिकली रियल एस्टेट एज अ मार्केट। रियल एस्टेट में लोगों की क्या गलतियां होती है, डेवलपर साइड, क्लाइंटल साइड, चैनल पार्टनर साइड, आप हर एक पॉइंट टैप ऑन कर रहे हो। तो ये काफ़ी चीज़ मुझे अच्छी लगी, बिकॉज ये चीज़ हमेशा आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करेंगी। और जो एजुकेशन, जो पर्पस जो आपने इसमें जो पॉइंट रखा है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। ठीक है, सो मैं इनके सारे व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा, सो यू शुड डेफिनेटली किया तो होगा ही, बट स्टिल जिन्होंने नहीं किया, यू शुड डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना ही करना है। ठीक है, बिकॉज शी हैज स्टार्टेड दिस जर्नी फॉर एन एजुकेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, आप अपने पसंदीदा चैनल जो है रियल टॉक विद अक्षदा, आज ही जाके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच अजिंक्य जी।